روس کی خفیہ ایجنسی KGB ہٹلر کی گسٹاپو سے بھی بدنام زمانہ تھی، اور اس ایجنسی کے خفیہ آدمیوں سے روس کے سرکاری افسر، سیاسی لیڈر اور عوام تک ڈرتے تھے۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران عمران کو جہاں دنیا کے دوسرے ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں بریف کیا گیا تھا، وہاں روس کی اس خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی KGB کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا تھا کہ اس کے عقوبت خانوں یعنی ٹارچر سیل میں لے جائے گئے آدمی کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ٹریننگ کے علاوہ بھی عمران نے کتابوں اور انگریزی کے رسالوں میں KGB کے بارے میں اور ان کے طریقہ تفتیش کے بارے میں بڑی ہولناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچی کہانیاں پڑھ رکھی تھیں، لیکن کمانڈو عمران کو اس ٹارچر اور اذیت کا جو KGB والے پکڑے ہوئے غیر ملکی ایجنٹ کو دیتے تھے، اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ٹریننگ کے دوران چکھا دیا گیا تھا۔ کمانڈو عمران کو ٹریننگ کے دوران جو ٹارچر برداشت کرنے کا سب سے قیمتی گر بتایا گیا تھا، وہ اس سے پہلے عمران نے نہ کسی کتاب میں پڑھا تھا اور نہ ٹریننگ کی کسی فلم میں ہی دیکھا تھا۔ یہ طریقہ دشمن کے شدید ٹارچر اور اس کی طرف سے شدید اذیت دیتے وقت اپنے اوپر بے ہوشی طاری کرنے کا گر یا طریقہ تھا۔ اگرچہ یہ بھی جسمانی طور پر ایک اذیت دہ مرحلہ تھا، مگر اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ایک بار جب جسم پر نیم بے ہوشی طاری کر لی جاتی تھی تو اذیت کی شدت آدھی سے بھی کم رہ جاتی۔ KGB کے ٹارچر ہاؤس کی ایک کوٹھری میں کمانڈو عمران کو بند کر دیا گیا۔ یہاں KGB کے چیف کرانن نے اپنی نگرانی میں عمران سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دنیا کی شاید کوئی اذیت ہوگی جو عمران کو نہ دی گئی ہو۔ اسے برہنہ کر کے ٹھنڈے فرش پر لٹا کر باندھ دیا گیا اور اس کے منہ میں پائپ سے زبردستی اتنا پانی داخل کیا گیا کہ عمران کا پیٹ جب غبارے کی طرح پھول گیا تو اس پر ٹھڈے مارے گئے۔ عمران ساری اذیتیں برداشت کرتا گیا، مگر اس نے یہ اعتراف نہ کیا کہ وہ پاکستانی ایجنٹ ہے۔ عمران کو یقین تھا کہ روس جدید ترین سائنسی ٹیکنالوجی کا حامل ملک ہے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس نے اپنے جسم کے اندر تو کوئی خاص چیز نہیں چھپا رکھی، اس کے جسم کی اسکریننگ ضرور ہوگی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کے جسم کی اسکریننگ کی گئی تو اس کے حلق کی پاکٹ میں چھپائی ہوئی کیمرہ فلم کی ٹیوب کا راز ضرور کھل جائے گا، مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ اس کے جسم کو داغا گیا، اس کو الٹا لٹکا کر اس کے جسم کے نازک اعضاء پر ٹھوکریں ماری گئیں، اس کو بجلی کے جھٹکے دیے گئے، اسے ہر قسم کی اذیت کے عمل سے گزارا گیا، مگر اس کے حلق کے اندر گلے کی پاکٹ میں چھپی ہوئی مائکرو فلم کی چھوٹی سی ٹیوب کا کسی کو بھی علم نہ ہو سکا۔ یہ بات عمران کے لیے بڑی اطمینان بخش تھی کہ پاکستان کا ایک قیمتی راز جس کی پاکستان کو اشد ضرورت تھی اس کے پاس محفوظ پڑا تھا، بس اسے کسی طریقے سے پاکستان پہنچانا باقی رہ گیا تھا۔ عمران کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر اسے فرار ہونے کا موقع مل گیا تو وہ کسی نہ کسی طرح ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے پہنچنے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ قیمتی فلم پاکستانی سفیر کے حوالے کر دی جائے، لیکن اس کے گرد سیکیورٹی اس قدر سخت تھی کہ اس کا KGB کے عقوبت خانے سے فرار ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس عقوبت خانے یعنی ٹارچر سیل میں عمران کو 15 دن تک بند رکھا گیا، جب KGB کے ٹارچر سیل کا چیف کرانن بھی کمانڈو عمران کو اذیت دے دے کر تنگ آ گیا اور اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ اسے گولی مار دے، تو اس نے عمران کو KGB کی اسپیشل کورٹ میں پیش کر دیا، کیونکہ کسی ایسے غیر ملکی ایجنٹ کو جان سے مار دینے کا اسے اختیار نہیں تھا جس سے اقبال جرم نہ کروایا گیا ہو۔ KGB چیف نے اپنی بلا اسپیشل کورٹ کے جج کے سر تھوپ دی کہ وہ خود ہی اس سے اقبال جرم کروائے، پھر جو سزا دینی ہے دے دے۔ اسپیشل کورٹ کے جج نے کمانڈو عمران کو عدالتی پولیس کے حوالے کر دیا کہ وہ ملزم سے اقبال جرم کروائے۔ عدالتی پولیس کا اسکواڈ جو عمران کو ہتھ کڑی لگا کر لے گیا تھا 10-12 قاتل قسم کے جرائم پیشہ افراد پر مشتمل تھا۔ انہوں نے عمران کو عدالت کی عمارت کے ایک کمرے میں بند کر کے اس پر وحشیانہ اذیت اور بربریت کی انتہا کر دی۔ کمانڈو عمران کی سخت جان ٹریننگ نے اس کی جان بچا لی، ورنہ اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید پہلے ہی روز مر جاتا۔ 3 دن تک عمران پر وحشیانہ تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے کمرے میں کراہتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ابھی یہ لوگ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ لکڑی کے ایک تختے پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا کہ 2-3 آدمی اندر آئے اور اسے اٹھا کر ایک کمرے میں لے گئے جہاں دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے ایک اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، یہ ٹارچر سیل کی کوئی ڈسپینسری تھی۔ یہاں اس کے زخموں کی معمولی سی مرہم پٹی کی گئی، ایک ٹیکا بھی لگایا گیا، پھر وہیں ایک کونے میں بیڈ پر لٹا کر اوپر بھاری کمبل ڈال دیا۔ اسے کسی قدر سکون کا احساس ہوا۔ کچھ دیر کے بعد کسی چیز کا گرم شوربہ پینے کو دیا گیا۔ شام تک عمران کی حالت سنبھل گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اب یہ لوگ اسے واپس ٹارچر چیمبر میں لے جائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اسے وہیں رکھا گیا۔
डिस्पेंसरी के कमरे में एक खिड़की थी जिसके शीशे के पट बंद थे और बाहर दिन की धुंधली सी रोशनी नजर आ रही थी। फिर ये रोशनी गायब हो गई। कमरे में एक बत्ती रोशन कर दी गई। शाम हो गई थी। रात को उसे एक आदमी सहारा देकर बाथरूम ले गया। इमरान ने बाथरूम का जायजा लिया। वहां कोई रोशनदान या खिड़की वगैरह नहीं थी। 3 मिनट के बाद उसे बाहर निकालकर वापस बिस्तर पर लिटा दिया गया। रात को खाने को सूखी डबल रोटी और कॉफी का डोंगा दिया गया। इमरान ने कॉफी में सूखी रोटी डुबो कर खाई, फिर लेटकर आंखें बंद कर ली। खुराक मिलने से जहन ने काम करना शुरू कर दिया था। वो सोचने लगा कि मैं कहां से कहां आ गया हूं। पीछे सत्तार सेठ और कमांडो जिब्रान उसके बारे में यही सोच रहे होंगे कि वो रूसी जहाज पर ही होगा और अपने मिशन में कामयाब होने के बाद 1 महीने तक किसी दूसरे तिजारती जहाज में बम्बई वापस आ जाएगा। उन्हें मालूम ही नहीं था कि उस पर क्या गुजर रही थी। रात को डिस्पेंसरी के कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने न इमरान को हथकड़ी लगाई थी और न कोई पहरेदार पास बिठाया था। उन्हें यही ख्याल होगा कि उस काल कोठरी से वो जख्मी हालत में निकल कर कहां जाएगा, लेकिन उसका जहन बड़ी तेजी से फरार के बारे में सोचने लगा। अगरचे वहां से निकलने के इम्कानात न होने के बराबर थे और उसे यकीन था कि डिस्पेंसरी के बाद दरवाजे के बाहर कोई पहरेदार जरूर बैठा हुआ होगा। इसके अलावा ये कोई अलग कमरा नहीं था। टॉर्चर सेल की इमारत के अंदर ही एक कमरा था। वहां से अगर वो निकल भी जाए तो इमारत में किसी भी जगह पकड़ा जा सकता था। उस इमारत में सिपाहियों की पूरी फौज मौजूद थी। कई दिनों से उसकी ये आदत बन गई थी कि जब वो जरा होश में होता तो कलमा पाक का विर्द शुरू कर देता। वो धीमी आवाज में कलमा पाक पढ़ता रहता। इस तरह उसे बड़ा रूहानी सुकून और रूहानी ताकत का एहसास होता था। जिस वक्त डिस्पेंसरी का दरवाजा खोलकर एक मैले कुचैले लंबे गर्म लिबादे वाला ऊंचा लंबा दाढ़ी वाला आदमी हाथ में लंबा झाड़ू पकड़े दाखिल हुआ तो उस वक्त भी इमरान मध्यम आवाज में कलमा शरीफ का विर्द कर रहा था। ये आदमी फर्श की सफाई करने वाला खाकरोब था। उसकी लंबी दाढ़ी सीने तक आई हुई थी। सर पर खाल की टोपी थी जिसमें से उसके बालों के पट्टे बाहर निकले हुए थे। आंखें मंगोलों की तरह तिरछी थी। वो अपनी धुन में इमरान की तरफ देखे बगैर फर्श पर लंबा झाड़ू आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगा। जब वो फर्श साफ करता इमरान के करीब आया तो रुककर इमरान की तरफ गौर से देखने लगा। उसने इमरान के मुंह से कलमा पाक का विर्द सुन लिया था। उसने जरा झुककर सरगोशी जैसी आवाज में पूछा, मुसलमान, इस्लाम। इमरान समझ गया कि ये तातारी मुसलमान है। उसने आहिस्ता से कहा, इस्लाम, मुसलमान। ये कहकर उसने पूरा कलिमा पढ़कर सुना दिया। तातारी मुसलमान ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मुसलमान, इस्लाम, और उसने भी कलमा शरीफ पढ़कर सुना दिया। इमरान उस तातारी को देखने लगा। बंद दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तातारी मुसलमान ने अपने होंठों पर उंगली रखकर इमरान को खामोश रहने का इशारा किया और फर्श की सफाई में मसरूफ हो गया। कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके गले में नब्ज देखने वाली स्टेथोस्कोप लटक रही थी। उसने इमरान की नब्ज चेक की और चला गया। उसके जाने के बाद तातारी मुसलमान इमरान के करीब आ गया और अपनी जबान में उसे कुछ कहा और साथ ही साथ उसे इशारा किया जैसे कह रहा हो कि फिक्र न करो, सब्र करो। उसके बाद वो दरवाजा खोल कर चला गया। इमरान सोचने लगा कि तातारी मुसलमान ने उसे मुतमईन रहने का जो इशारा किया था उसका क्या मतलब हो सकता है। क्या वो उसे रूसियों की कैद से आजाद करवाना चाहता है? मगर एक मामूली तातारी उसकी क्या और कैसे मदद कर सकता है? इमरान के दिल में उम्मीद की एक किरण चमकी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये किरण बुझ सी गई। दुनिया के इतने बड़े मुल्क की इतनी जबरदस्त और बदनाम जमाना इंटेलिजेंस की कैद से फरार करवाने में ये गरीब तातारी उसकी क्या मदद कर सकेगा? इमरान के जहन पर एक बार फिर उदासी छा गई और वो आंखें बंद करके दिल ही दिल में कलमा पाक का विर्द करने लगा। रात गुजर गई। टॉर्चर सेल वालों के वहशियाना तशद्दुद के बायस इमरान का सारा बदन दर्द करता रहा। 2-3 दिन की देखभाल और इलाज मुआवजे से काफी फर्क पड़ गया और इमरान का चेहरा जो एक तरफ से सूज गया था ठीक हो गया। उसका ख्याल था कि ये लोग उसे एक बार फिर तशद्दुद की चक्की में डालकर टॉर्चर चैम्बर में ले जाएंगे, लेकिन उसे डिस्पेंसरी में ही रहने दिया गया और दवाएं और कदरे साफ सुथरी खुराक मिलती रही। तातारी मुसलमान रोजाना रात को कमरे की सफाई करने आता और इशारों इशारों में उसे तसल्ली देकर चला जाता। इमरान ने यही नतीजा निकाला कि ये तातारी मुसलमान उसे सब्र से तशद्दुद बर्दाश्त करते रहने की तलकीन कर रहा है और इसके जहन में उसे फरार करवाने का कोई ख्याल नहीं। चौथे दिन शाम को डिस्पेंसरी की खिड़की के बाहर बर्फबारी शुरू हो गई। गुरूब होते सूरज की धुंधली सी रोशनी में खिड़की में से बर्फ के गाले गिरते नजर आ रहे थे। उस रोज तातारी मुसलमान 3 बार डिस्पेंसरी में सफाई करने आया। दोपहर को आया तो कमरे की खिड़की के पास प्लास्टिक की बाल्टी रख कर चला गया। दूसरी बार शाम के वक्त आया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाल्टी में रद्दी कागज वगैरह डालने लगा।
उस वक्त नब्ज देखने वाला रूसी कंपाउंडर या डॉक्टर अपने असिस्टेंट के साथ उसके गाल के एक जख्म पर दवाई लगा रहा था। तातारी मुसलमान इतनी देर तक फर्श की सफाई में लगा रहा। साफ लग रहा था कि वो सफाई के बहाने वहां कुछ देर के लिए रुके रहना चाहता है। जब डॉक्टर और उसका कंपाउंडर चला गया तो तातारी मुसलमान इमरान के पास आया और झुककर उसे अपनी जबान में कुछ बोलकर और कुछ इशारे करके कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। वो बार बार खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। फिर वो तेज तेज चलकर खिड़की के पास गया और उसे जरा सा धकेला तो खिड़की खुल गई। हालांकि इससे पहले खिड़की बंद रहा करती थी। शायद बाहर से खिड़की की चिटखनी लगाई हुई थी, लेकिन अब किसी ने उसे बाहर से उतार दिया था। तातारी मुसलमान ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और वहीं खड़े खड़े हाथ से खिड़की के नीचे की जानिब इशारा करने लगा। फिर इमरान के पास आकर सरगोशी की आवाज में बोला अल्हम्दुलिल्लाह और चला गया। इमरान को वो एक मखमसे में डाल गया था। इमरान की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तातारी मुसलमान ने क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है। इतना वो समझ गया था कि वो उसे खिड़की खोल कर दिखा रहा था कि खिड़की खुली है और हाथ का इशारा नीचे की तरफ करके ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे खिड़की से नीचे उतरना होगा। या अल्लाह, ये इस तातारी मुसलमान ने किस किस्म का खतरनाक मंसूबा बनाया है। एक बात का उसे यकीन था कि ये शख्स इस सारी इमारत के अंदर और बाहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उसने कुछ सोच समझ कर ही कोई स्कीम तैयार की होगी। इमरान ने अपने आप को ज़हनी तौर पर वहां से भागने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उसने मोटे कंबल की गर्म कमीज और उसी कंबल से बनाया हुआ गर्म पाजामा पहन रखा था। पाँव में मोटे खुरदरे ऊन की गर्म जुराबें थीं। सर पर गर्म ऊन की टोपी थी। खुदा का शुक्र था कि फौजी माहिदे की फोटो फिल्म के नेगेटिव की ट्यूब उसके गले के अंदर पॉकेट में महफूज पड़ी थी। यही उसकी सबसे कीमती मता थी जो उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज थी और जिसे वो हर हालत में पाकिस्तान पहुंचाना चाहता था। इमरान की छठी हिस्स उसे बता रही थी कि तातारी मुसलमान आज रात उसे खिड़की के जरिए फरार करवाने की स्कीम बना चुका है। शायद इसलिए भी उसने वो रात मुंतखब की थी कि उस रात बर्फबारी हो रही थी और उस बर्फबारी में बाहर किसी की मौजूदगी का इम्कान नहीं था। मगर इमरान को ये सवाल परेशान कर रहा था कि अगर ये दुरुस्त है तो तातारी मुसलमान उसे वहां से भगाएगा कैसे। उस मनहूस टॉर्चर हाउस की इमारत से जहां कदम कदम पर पहरा लगा था और रूसी गश्ती पुलिस खूंखार कुत्तों के साथ सारी रात गश्त करती रहती थी, उसे बाहर किस तरीके से निकालेगा। रात को इमरान को शोरबे के साथ डबल रोटी दी गई। डिस्पेंसरी का आदमी उसे ये चीजें देकर चला गया। इमरान ने गर्म शोरबे में डबल रोटी डबोकर खाई और रोज की तरह बर्तन पलंग के नीचे रख दिए। रोज की तरह 2 मुसल्ला सिपाही कमरे में आकर इमरान के बिस्तर वगैरह को चेक करने के बाद चले गए। कमरे में खामोशी छा गई। खिड़की के बाहर अंधेरा था और गिरती बर्फ नजर नहीं आ रही थी। तातारी मुसलमान के आने का वक्त हो गया था मगर वो अभी तक नहीं आया था। इमरान का दिल कह रहा था कि आज की रात कुछ होने वाला है। वो एक एक लम्हे को गिन रहा था। उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। कमरे की बत्ती जल रही थी। इमरान डिस्पेंसरी का नसवारी रंग का कंबल ऊपर लिए पलंग से टेक लगाए नीम दराज था। अचानक दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई और तातारी मुसलमान बड़ा सा झाड़ू लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद कर दिया और फर्श की सफाई करने की बजाय सीधा खिड़की के पास गया। उसका एक पट थोड़ा सा खोल दिया और वापस इमरान के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए अपनी जबान में कुछ कहा और खिड़की की तरफ इशारा किया। इमरान जरा सा झिझका। तातारी मुसलमान ने उसे बाजू से खींचकर कंबल से बाहर निकाला और कंबल उसके कंधों पर डालकर गुस्से में कुछ कहा और उसे खींचता हुआ खिड़की के पास ले गया। खिड़की में से बर्फीली हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। अब इमरान भी तैयार हो गया था। उसने कंबल को अपने जिस्म के गिर्द अच्छी तरह से लपेटा और खिड़की में से नीचे की तरफ देखा। उसे अंधेरे में सिवाय बर्फ के गिरते हुए गालों के और कुछ भी नजर न आया। तातारी मुसलमान ने हाथ खिड़की से बाहर निकालकर एक रस्सी पकड़कर इमरान के हाथ में दे दी और नीचे की तरफ इशारा किया और उसे धकेलने लगा। दरअसल वो चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके वो बाहर कूद जाए। इमरान ने रस्सी को पकड़ा और खिड़की में बैठ गया। रस्सी को अपनी कमर के गिर्द लपेटकर वो आहिस्ता से नीचे उतर गया। तातारी मुसलमान ने उसके बाहर निकलते ही खिड़की बंद कर दी। कमांडो इमरान को कमंद की मदद से इमारतों से उतरने और चढ़ने की खास मशक करवाई गई थी। उसने दोनों पांव दीवार के साथ लगा दिए और हाथों से रस्सी को थोड़ा थोड़ा छोड़कर नीचे उतरने लगा। वो तीसरी मंजिल पर था। तातारी मुसलमान ने उसी हिसाब से रस्सी बाहर लटकाई हुई थी। आखिर उसके पांव जमीन पर लग गए। उसने जल्दी से रस्सी अपनी कमर के गिर्द से खोली और दीवार के साथ लगकर अंधेरे में गौर से देखने लगा कि वो किस जगह पर है। इतने में एक बर्फपोश इंसानी हयूला बर्फबारी और अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ जल्दी जल्दी चलाता सामने की तरफ ले गया। आगे ढलान थी।
गिरती बर्फ में जमीन रात के अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। आगे एक ऊंची दीवार थी। दीवार के दूसरी तरफ 2 बड़े बड़े चौकोर ड्रम पड़े थे। ये कूड़े करकट के ड्रम थे। बर्फपोश आदमी ने एक ड्रम का ढकना एक तरफ हटाया और इमरान को ड्रम के अंदर जाने के लिए कहा। इमरान ड्रम में उतर गया। वो गत्ते के डिब्बों, खाली बोतलों और टीन के खाली डिब्बों और कपड़ों और चीथड़ों के ऊपर गिरा। ड्रम काफी बड़ा था और आधे से ज्यादा कूड़े करकट वगैरह से भरा हुआ था। बर्फपोश मलबूस पुरस्कार आदमी ने ड्रम का ढकना बंद कर दिया। ढकने के सुराख में से सर्द बर्फीली हवा ड्रम में आ रही थी। ये पुरस्कार बर्फपोश आदमी तातारी मुसलमान का आदमी ही हो सकता था। इमरान समझ गया कि तातारी मुसलमान की स्कीम क्या है। कूड़े करकट का ये ड्रम जब किसी ट्रक में दूसरे ड्रमों के साथ लाद कर बाहर ले जाया जाएगा तो इमरान भी उसके साथ ही उस उकूबत खाने से बाहर निकल जाएगा। ड्रम के अंदर की फजा बाहर की निस्बत कम सर्द थी। इमरान ने अपने आप को अस्पताल के खुरदरे कंबल में लिपटाया हुआ था। वो ड्रम के कोने में गत्ते के डब्बों और पुराने चीथड़ों में घुसकर बैठ गया और अपने आप को मजीद छुपाने के लिए अपने ऊपर कुछ और चीथड़े डाल दिए। ड्रम के अंदर खूब अंधेरा था और किस्म किस्म की दवाइयों की बू से ड्रम की फजा बोझल हो रही थी। ये बड़ी नागवार बू थी, मगर इमरान को वहीं पड़े रहना था। उसका अंदाजा था कि कूड़ा ले जाने वाला ट्रक सुबह सवेरे ही आएगा। बर्फ गिरने से ड्रम के ढक्कन के सुराख बंद हो गए थे, मगर अंदर इधर उधर के सुराखों से ताजा हवा आ रही थी, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी नहीं हो रही थी। इमरान को यकीन था कि तातारी मुसलमान ने जिस तरह यहाँ बर्फबारी में अपने एक आदमी को खड़ा कर रखा था और जिसने उसे ड्रम तक ले जाने में उसकी मदद की थी, उसी तरह जहाँ कूड़ा करकट गिराया जाता है वहां भी उसका कोई ना कोई आदमी जरूर मौजूद होगा जो या तो उसे ये बताएगा कि उसे किस तरफ को फरार होना चाहिए या उसे कुछ वक्त के लिए किसी महफूज जगह पर छुपा देगा। कमांडो इमरान अभी केजीबी की इमारत टॉर्चर हाउस के अंदर ही था और खतरे से बाहर नहीं हुआ था। कूड़े के ड्रम के अंदर सर्दी और अंधेरे में इमरान के लिए वक्त का एहसास खत्म हो गया। ऐसा लगता था कि वक्त ड्रम के बाहर गुजर रहा है। वो कब तक ड्रम के अंदर सिमट कर बैठा रहा, इमरान को कोई अंदाजा नहीं था। इतना उसे इत्मीनान था कि रात के वक्त कोई डॉक्टर या कंपाउंडर डिस्पेंसरी में नहीं आता था, चुनाचे उसके फरार का कम से कम सुबह तक किसी को इल्म नहीं होगा। लेकिन अचानक किसी काम से कोई डिस्पेंसरी में आ भी सकता था और कैदी का बिस्तर खाली देखकर खतरे के अलार्म का बटन दबाकर सबको बेदार कर सकता था। फिर केजीबी की इमारत को गश्ती पुलिस घेरे में लेकर खूंखार कुत्ते छोड़ देती और ये कुत्ते इमरान की बू पाकर उसे ड्रम के अंदर से भी पकड़ सकते थे। वो खुदा से यही दुआ मांग रहा था कि रात को कोई आदमी डिस्पेंसरी वाले कमरे में दाखिल ना हो और उसका मोहसिन तातारी मुसलमान उसे सुबह होने से पहले पहले वहां से निकाल कर ले जाए। वो जानता था कि कूड़े के ड्रम ले जाने वाला ट्रक सुबह सुबह ही आता है। उसने अपने कान उस ट्रक की आवाज पर लगा रखे थे। ये भी हो सकता था कि तातारी मुसलमान का साथी उसे ट्रक के आने से पहले ही वहां से निकाल कर किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दे। मगर केजीबी की कत्लगाह में कूड़े का ड्रम ही एक महफूज जगह नजर आती थी, वो भी सुबह होने से पहले तक। बाहर जरूर बर्फबारी जारी थी, जिसकी वजह से ड्रम के ढकने पर बर्फ की तह जम जाने से अंदर की फजा यख हो गई। इमरान को 2-1 बार कपकपी सी महसूस हुई और उसने अपने ऊपर मजीद चीथड़े डाल दिए, मगर सर्दी का एहसास कम नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।